السلام علیکم، میں ہوں عدیل عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل اسکلز ایونٹ 2021 کے ایک اور ٹیوٹوریل کے ساتھ حاضر خدمت۔ آج ہم پڑھیں گے پروجیکٹ براؤزر کے بارے میں۔ جیسے کہ پچھلی کلاسز میں ہم نے پڑھا تھا، پروجیکٹ براؤزر ہمیں تفصیل فراہم کرتا ہے ان تمام ویوز کے بارے میں، پلینس کے بارے میں، اسکیچز کے بارے میں، ایلیویشنز کے بارے میں، سیکشن ڈیٹیلز، رینڈرنگ، جو چیز ہم نے اس میں کی ہوئی ہے وہ ہمیں یہاں پر فراہم کرتا ہے۔ تمام ویوز کو ہم نیویگیٹ کر سکتے ہیں پروجیکٹ براؤزر کے بارے میں۔ پروجیکٹ براؤزر کو جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہم اسے آن اور آف یوزر انٹرفیس میں کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اس کو اگر ہم کلک کر دیں تو یہ آف ہو جائے گا، دوبارہ اس کو لانا چاہیں تو یہ آ جائے گا، ٹک کریں گے دوبارہ آ جائے گا۔ ادھر رائٹ کلک کریں گے تو ادھر براؤزر آرگنائزیشن آئے گا۔ براؤزر آرگنائزیشن میں یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں کیٹیگریز ہیں، اس میں یہ آل پہ کلک۔ آل پہ کلک کا مطلب یہ ہے کہ تمام پروجیکٹ جو چیز استعمال ہوئی ہے، جو سیکشن ویوز وغیرہ یا جتنی شیٹس بنی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری ہمیں یہاں پہ دکھائی دیں گی۔ اگر ہم اس کو یہاں پہ کلک کر دیں فیز میں کلک کرنے کے بعد اپلائی کرتے ہیں، اوکے کریں گے تو یہاں پہ ہمارے اگر پروجیکٹ میں فیزز ہیں، مثال کے طور فیز 1، فیز 2، فیز 3، جس طرح ہم ہاؤسنگ اسکیم میں دیکھتے ہیں یا کسی قانونی یا کسی شہر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں فیزز ملتے ہیں۔ تو یہاں پہ فیزز اگر ہوں گے تو یہاں پہ دکھائی دیں گے۔ یہاں پہ جو سوالیہ نشان آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نام ہمیں ابھی کسی فیز کا نام نہیں دیا، مطلب یہ ہے اس کا کہ اس میں کوئی فیز ڈیفائن نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے یہاں پہ یہ دکھائی دے رہا ہے سوالیہ نشان۔ اگر ہم دوبارہ یہاں پہ ڈسپلن وائز کریں، کلک کرتے ہیں اور اوکے کرتے ہیں تو ہمیں ویوز دکھائی دے دیں گے۔ فلور پلان ہے، آرکیٹیکچر ہے، 3D ویوز ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، آرکیٹیکچر ہے، اس میں کوآرڈینیشن ہے، ٹھیک ہے، ایلیویشن ہے، آرکیٹیکچر ایلیویشن ہے، اس میں آرکیٹیکچر ہے، سیکشن وال سیکشن ہے، بلڈنگ سیکشن علیحدہ ہے، ڈیٹیل ویوز علیحدہ ہے۔ دوبارہ ہم اگر رائٹ کلک کرتے ہیں واپس جاتے ہیں، اس کو ٹائپ یا ڈسپلن کے علاوہ ہم دوبارہ آل پہ رہنے دیتے ہیں، اور اس طرح یہ دو چیزیں اور بھی ہیں، یہ بھی سیم ہی اسی طریقے سے ڈسپلن ہے۔ ٹائپ اور ڈسپلن میں ہم نے دیکھا تھا ٹائپ کیا تھی، آرکیٹیکچر تھی، اور ڈسپلن جو تھا وہ کوآرڈینیشن، اس طرح تو یہ ڈسپلن میں آئے گی اور ٹائپ میں آئے گی۔ ڈسپلن صرف ایک ہی چیز آئے گی آرکیٹیکچر میں۔ مثال کے طور پر ہم اگر کلک کرتے ہیں یہاں پہ اپلائی کر کے اوکے کرتے ہیں تو ہمیں دیکھیں ڈسپلن ویوز میں آئے گا۔ ویوز میں دیکھیں آرکیٹیکچر ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیٹیگری آ گئی۔ تو آرکیٹیکچر میں فلور ہے، 3D ویوز ہے، ایلیویشن ہے، سیکشنز ہے، ڈیٹیلز ہے، رینڈرنگ ہے، یہ ساری اس میں باقی۔ ہم دوبارہ واپس جاتے ہیں تو آرگنائزیشن میں یہاں پہ آل کلک کرتے ہیں اور اس کو یہیں پہ رہنے دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے لیولز کے بارے میں۔ یہ لیولز ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، مثال کے طور پر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ لیول 1 ہے، لیول 2 ہے۔ فلور پلان میں ہمارے پاس جب ہم نئی ڈرائنگ کھولتے ہیں تو یہ دو لیول ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کو جاننا چاہیں، دیکھنا چاہیں کہ ان کے درمیان ہائٹ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، تو یہ ہمیں ساؤتھ ایلیویشن میں دکھائی دیں گے۔ بائی ڈیفالٹ جو بھی پروجیکٹ ہم کھولتے ہیں اس میں دو لیول، یہ دیکھیں یہ دو لیول ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ایک تیسرا لیول بھی چاہیے تو ہم کیا کریں گے، آرکیٹیکچر میں جائیں گے، لیول میں کلک کریں گے، اور اگر ادھر سے کھینچتے ہیں تب بھی ہمیں لیول دکھائی دے گا۔ تو ہم ادھر کرتے ہیں پروجیکٹ پراپرٹیز پینل کو، لیول بنانا چاہے تو ہم طرح کھینچ سکتے ہیں۔ اگر دوسری طرف لیول پہ کلک کر رہے ہیں لیول 2 پہ اور یہاں سے ڈریگ کرتے ہیں یہاں تک آ گئے۔ ہم لیول کو اوپر بھی بنا سکتے ہیں، نیچے بھی بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اس کو یہاں پر بھی بنا دیتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ ہم نے لیول بنائے، دیکھیں یہ لیول 1 ہے، لیول 2 ہے، یہ ہمارا لیول 3 ہے۔ اگر ہم اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو تب بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیول 1 لیول 2 3 ہم ڈیلیٹ کر دیا۔ لیول 3 کو ہم اگر دوبارہ بنائیں گے تو وہ کس طرح بنائیں گے، لیول 2 لیتے ہیں اور
यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, ये लॉक हो गई। अगर हम इन डायमेंशंस को मिसाल के तौर पर अगर इसको आगे पीछे करें, देखें तो ये दोनों लॉक का मतलब ये है कि हमने इसकी डायमेंशंस को लॉक कर दिया है। ऊपर नीचे आगे दो लेवल्स लॉक है। अगर इनको हम इसको दोबारा बढ़ाएंगे, देखें तो अब ये सिंगल आ गया है, लेकिन अगर हम इसी को दोबारा क्लिक करते हैं और आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर भी ये आ जाएगा। अब अगर हम इस दोनों वैल्यूज को लॉक करते हैं, दोनों लेवल्स लॉक हो गए। लॉक होने के बाद हम इसको अगर कम करते हैं तो ये देखो इस तरह आ जाएगा। तो ये सारे के सारे इकट्ठे मूव करते हैं। अनलॉक करने से हम सिंगल लेवल को, लाइन को मूव वगैरह आगे पीछे कर सकते। ये इसका 3D व्यू है, 3D आइकन है, दिखाई देगा। लेवल्स की हाइट के मुताबिक है। लेवल की हाइट हमारे पास जो लेवल 1 है वो 0 पे होता है, लेवल 2 जो है वो 10 पे है, लेवल 3 जो है 21 पे। अगर इसकी हम वैल्यू चेंज कर देते हैं और 30 कर देते हैं, 30 जो है इंटर करेंगे तो ये देखें मैम और 3 के दरम्यान जो फासला आ जाएगा वो क्या है, 30 का आ गया। दोबारा एडिट करते हैं, हम इसे कहते हैं कि हमने 20 होना चाहिए, तो इसमें जो फासला है वो 20 फीट आ गया है। लेवल का नाम भी हम चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये लेवल है, अब ये लेवल 1 से नीचे है तो हम इसे ग्राउंड फ्लोर भी लिख सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर हो गया। यस करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसने रिक्वायरमेंट दे दी है कि अगर ग्राउंड फ्लोर को आप नाम देना चाहते हैं और चेंज करना चाहते हैं ब्राउज़र में और प्रोजेक्ट ब्राउज़र पैनल में, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये इस तरह लेवल 1 है। ग्राउंड फ्लोर हमारा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कर देंगे इसको। ये लेवल 3 आ गया। ये हम यहाँ पे चेंज करके वार्निंग को यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, तो प्रोजेक्ट ब्राउज़र में ये बाकायदा चेंज हो जाता है। ये लेवल्स है। लेवल्स जो है हमें यहाँ पे भी दिखाई देंगे, हमें ईस्ट एलिवेशन में भी दिखाई देते हैं, नॉर्थ में भी दिखाई देते हैं, साउथ में भी दिखाई देते हैं। हर तरफ जो है हमें लेवल्स बाकायदा दिखाई देंगे। अब हम प्रोजेक्ट यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। इसमें जो प्रोजेक्ट यूनिट्स है, हम प्रोजेक्ट यूनिट को अपने प्रोजेक्ट के लिए सेट कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट है UN। तो शॉर्टकट है, या अगर आप हमारा यहाँ पे देखना चाहते हैं तो मैनेज में जाएंगे, मैनेज में जाके यहाँ पे से यूनिट टेब आपको दिखाई देगा। ये UN प्रोजेक्ट यहाँ पे जब देखें यहाँ पे है कॉमन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कॉमन। यहाँ पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर, HVAC, इलेक्ट्रिकल पाइप, जिस किस्म का काम हमारा चाहे कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ चेंज करना चाहते हैं कि लेंथ का लेंथ के यूनिट हमारे पास होने चाहिए कि इंचेस। किसी में प्लेस 0 हो गया, ओके कर देंगे। हमारे पास ये देखें लेंथ इंच मार्क आ गया है, यहाँ पे आ गया है। एरिया के लिए हम स्क्वायर मीटर इस्तेमाल करते हैं, एंगल के लिए डिग्री इस्तेमाल करते हैं, मास या डेंसिटी के लिए जो है ना वो केजी, मास और क्यूब इस्तेमाल करते हैं। स्लोप के लिए हमारे पास डिग्री है, हम इसको डिग्री की जगह में कहता हूँ कि नहीं, फ्रैक्शन में होना चाहिए। फ्रैक्शन में होगा यहाँ पर से राइट और 1/12 नियरेस्ट आ गया। यहाँ से हमारे पास ये यूनिट्स आ गए। इसके अलावा टाइम के लिए है, सेकेंड स्पीड के लिए जो है ना यूनिट्स हमारे पास ये है। वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब है, करेंसी वगैरह, ये सारे यूनिट्स हम प्रोजेक्ट में सेट कर सकते हैं। यूनिट्स में हमारे पास डायमेंशन में जो है ना ये यहाँ पर ये यूनिट दिखाई दे, ये भी डायमेंशन है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हमारा ये सारा इसमें मौजूद है। एक और चीज़ हम डिस्कस करते हैं जिसे हम कहते हैं ग्रिड। ग्रिड्स जो है वो अहम ऑप्शन है। यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट में कुछ मार्क्स जो है वो सेलेक्ट करते हैं। साउथ एलिवेशन में हमने देखा 3 ग्रिड और यहाँ पर ये 4 ग्रिड। ये साउथ एलिवेशन में हो गया। हम इसको ईस्ट में भी क्लिक कर सकते हैं, जाएंगे ग्रिड में, ग्रिड्स ऑप्शन इस्तेमाल करके हम यहाँ पर ग्रिड्स या लाइनें वगैरह खींच सकते हैं। ये हमें नॉर्थ में भी दिखाई देगा, साउथ में भी दिखाई देगा और वेस्ट में भी दिखाई देगा। तो ये सारी की सारी ग्रिड्स जो है हमने जो लाइनें खींची हैं वो हमें अपने प्रोजेक्ट में दिखाई देंगी। लेवल 1 में हम चलते हैं। लेवल 1 में हम जाएंगे तो हमें ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। यानी लेवल में
हम फ्लोर प्लान में जाते हैं तो हमारे पास मौजूद है। इसको हम नंबर भी कर सकते हैं। हम इनको नंबर की बजाय 1 2 3 4 यहाँ पर नंबर है, और इसको हम करते हैं जी ए, यहाँ पर से बी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर से सी कर सकते हैं, डबल क्लिक करके डी कर सकते हैं। तो हम इनके नामों को भी चेंज कर सकते हैं। 1 2 3 4 ABCD या ये सारे के सारे एजुकेशन में हम ग्रिड जब लगाएंगे तो बाकायदा हम इसके दरमियान हम जो है ना फासला भी कर सकते हैं, इनको नाप भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मॉडिफाई पैनल में हम जाएंगे, मेजर करते हैं, तो ये बाकायदा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इक्वल टैब है, हम इसको क्लिक करते हैं तो ये तमाम का तमाम यहाँ पर फासला बराबर हो जाएगा हर एक टैब। हम इसको ट्रैक भी कर सकते हैं, मूव वगैरह मॉडिफाई में ट्रैक भी कर सकते हैं इक्वल। यहाँ पे इसमें ये लॉक है, इसको चेक करते हैं, ये भी लॉक है, ये भी लॉक है, ये भी लॉक है, इसको भी अनलॉक करते हैं, इसको भी अनलॉक करते हैं। इस गेट को ये अनलॉक हो जाएंगे तो इस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक मॉडिफाई है, हम अगर इसको पिन भी कर सकते हैं, इसको किसी भी डायमेंशन को पिन कर सकते हैं। और अब ये मूव नहीं करेगी, इसको भी हम दोबारा अगर पिन करना चाहें तो ये भी यहाँ से पिन हो सकती है। तो किसी में हम अगर पिन करेंगे तो अभी इसको अनलॉक करके मूव करेंगे तो आप देखेंगे अपनी जगह पर खड़ी हुई है। अभी ये मूव होगी, लेकिन सिर्फ वो लाइन जैसे हम करना चाहते हैं। दोबारा इसको यहाँ पे ले आएंगे, इसको हम दोबारा जाते हैं, पिन करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद अनलॉक करते हैं। तो ग्रिड्स लाइन जो है हम इस तरह कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली ट्यूटोरियल में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।